Friends, let's start with the numericals of interference that are mainly assignment numericals. We have done the textbook numericals. We saw that these are not complete. So I needed to do some extra sums apart from the textbook numericals, which would cover the formula more deeply, as well as give you a good experience about the variation of use of the formula. Okay, formula are those limited one only, but how to use them in a different way so that you are prepared for the competitive exams. These sums which you are doing is enhancement of your textbook and will be helpful in tackling the sums of competitive exam. So before we start this, let me remind you of the arrangement of the quantities. These are the two sources in interference experiment, S1 and S2, two sources. Distance between them is taken as small d. This is a screen placed at a distance capital D from the sources. The center of the screen taken as a intersection of perpendicular bisector of S1 S2. बराबर है. This is a center point. Now this is a point P on which we are taking the interference pattern. ये x distance हो गया सेंटर से फ्रिंज का. ये distance R1, ये distance R2. R1 and R2 are the distance traveled by the light wave from S1 and S2. And ये हो गया सेंटर लाइन के साथ एंगल थीटा, यानी this point P where the fringe is coming bright or dark is at an angle theta, angular position, and ये linear position हो गया. R1 R2 distance covered by the light waves, small d distance between the sources, and capital D distance between the screen and the source. Okay, started with very first sum. In the very first sum it is given that two coherent line sources are 0.1 millimeter apart. दो sources के बीच का distance यानी small d दिया हुआ 0.1 millimeter, मीटर में convert कर दिया. If center of the fourth dark fringe of the pattern formed on the screen, fourth dark fringe, screen is placed at a distance 1 meter from the sources, is at 3 millimeter from the central bright fringe, find the wavelength of the monochromatic light used. Small d दिया है, capital D दिया हुआ है, and बोला है कि अगर ये distance 3 millimeter है fourth dark का, तो wavelength कौन सा यूज किया है. ओके, तो यहाँ पे dark fringe है मतलब destructive interference. तो for destructive interference कंडीशन क्या आएगा, पार्ट डिफरेंसेस 2n minus 1 lambda by 2. बट वी ऑल्सो नो दैट पार्ट डिफरेंस इज गिवन एज, पार्ट डिफरेंस के अलग अलग फॉर्मूला थी, उसमें से हम लोग चूज करते हैं एक्स डी बाई डी. तो देयरफॉर एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n minus 1 lambda by 2. हमें लैम्बडा फाइंड करना है, तो लैम्बडा को सब्जेक्ट का फॉर्मूला करते हैं. तो दैट विल बी 2xd अपॉन 2n minus 1 इंटू कैपिटल डी. वैल्यू पुट अप करें तो 2 इंटू एक्स 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 इंटू स्मॉल डी 7 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 अपॉन 2n माइनस 1 फोर्थ डार्क है तो 2n माइनस 1 यानी 7 हो गया इंटू कैपिटल डी 1 मीटर. सो दिस कम्स आउट टू बी 7 कैंसल्स 6 इंटू 10 रेज टू 6 इंटू 10 रेज टू ओके. This 3 by 10 raised to minus 3. So 6 into 10 raised to minus 7 meter. That is 6000 angstrom. Either you can write 6000 angstrom or 600 nanometer. Okay, ये हो गया first sum. Clear? फिर second sum में दिया हुआ है. In the second sum, in Young's double slit experiment, distance between two slits and that between the slit and the screen is 0.05 centimeter and 1 meter respectively. Small d दिया 0.05 centimeter यानी 5 into 10 raised to minus 4 meter हुआ. Capital D दिया 1 meter. And फिर बोला हुआ है find the distance between third bright and fifth dark fringe. Wavelength of light is 5000 angstrom. यहाँ पे आपको wavelength of light दे दिया है, लैम्बडा दिया हुआ है. And बोला है कि स्क्रीन पे फिफ्थ डार्क और थर्ड ब्राइट के बीच का डिस्टेंस ढूंढो. अब स्क्रीन पे कहाँ पे कौन से फ्रिंज होंगे वो पता लगाना है. तो पहले सपोज ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन का सेंटर से थर्ड ब्राइट यहाँ पे कहीं पे आएगा एंड फिफ्थ डार्क उसके बाद आएगा. ओके, सेंटर से फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट थर्ड ब्राइट फिर फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क थर्ड डार्क फोर्थ डार्क फिफ्थ डार्क, तो यूँ आएगा. हमें इन दोनों के बीच का गैप ढूंढना है. वी नीड टू फाइंड एक्स डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ब्राइट एंड फिफ्थ डार्क. तो डायरेक्टली तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं इन दोनों के बीच का, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रॉम द सेंटर, x3 भी बोल देते हैं. देन द डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ डार्क फ्रॉम द सेंटर x5d बोल देते हैं. एंड फिर दोनों को माइनस कर दो.
अब फिर दोनों को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा x आपके पास। क्लियर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ x। यानी डिस्टेंस इज द थर्ड ब्राइट एंड द फिफ्थ डार्क। तो कैसे ढूंढेंगे, चलो थर्ड ब्राइट का डिस्टेंस फिफ्थ डार्क का डिस्टेंस, तो ये मेथड हो गया। ओके, तो पहले फॉर थर्ड ब्राइट ना, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है इसलिए कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस। तो फॉर कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस वी हैव द कंडीशन पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्बडा, बट पार्ट डिफरेंस इज x d by d। तो देयरफॉर x d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्बडा, ये हो गया। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन छोटा d, यानी कि x ऑफ थर्ड ब्राइट, हमने थर्ड ब्राइट के लिए लेना है। तो फॉर थर्ड ब्राइट 3 लैम्बडा, फॉर्मूला हो जाएगा 3 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये हो गया थर्ड ब्राइट के लिए। ओके, फिर सेम वे वी गो फॉर फिफ्थ, ये 3 भी ढूंढ लिया। अब फिर 5D के लिए, तो फॉर फिफ्थ डार्क ना, यहाँ पे डार्क फ्रिंज है इसलिए डिस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस। तो फॉर डिस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस वी हैव द कंडीशन पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 2n minus 1 lambda by 2, 2n minus 1 lambda by 2, but we know that part difference is given as x d upon capital D. हाँ, every time you have to note this, x d upon capital D. Therefore x d upon capital D will be equal to 2n minus 1 lambda by 2. So therefore x will be equal to 2n minus 1 lambda capital D by 2d. Now for fifth ब्राइट लेना है, यानी n equal to 5 लेना है। तो 5 to the 10 minus 1 9 by 2 4.5 lambda capital D by 2d, sorry by d। ओके, क्या गेट, n का वैल्यू 5 है, फिफ्थ डार्क है इसलिए ऑर्डर इज फिफ्थ। तो 5 into 2 10 minus 1 9 डिवाइड बाई 2 4.5, तो ये हो गया फिफ्थ डार्क का डिस्टेंस। नाउ यू वांट डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ब्राइट एंड फिफ्थ डार्क। डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ब्राइट एंड फिफ्थ डार्क, तो x will be equal to x 5d minus x 3b। 5d is 4.5 lambda capital D by d and third bright is 3 lambda capital D by d। ये रहा, यहाँ 4.5 ये 3 आया, माइनस को दोनों को तो आएगा 1.5 lambda capital D by छोटा d। पुट अप द वैल्यूज 1.5 into lambda is given 5000 इंस्टॉम, यानी कि 5 into 10 raised to minus 7। d is given 1 मीटर, छोटा d is given 5 into 10 raised to minus 4, 5 into 10 raised to minus 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर तो क्या आएगा, 5 5 तो कट हो गया, तो व्हाट इमेज इज 1.5 into 10 raised to minus 3 मीटर, यानी कि 1.5 मिलीमीटर हो गया, ये आंसर आ गया। ओके, दैट इज द सेकंड वन। क्लियर, अब यहाँ पे थर्ड ब्राइट एंड फिफ्थ डार्क बोला है, नो अदर कमेंट इज गिवन, तो फाइन, दे आर बोथ ऑन द सेम साइड। पर ऐसा भी हो सकता है कि बोला हो थर्ड ब्राइट ऑन वन साइड एंड फिफ्थ डार्क ऑन अदर साइड। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है थर्ड ब्राइट ऑन वन साइड एंड फिफ्थ डार्क ऑन अदर साइड, यानी ये फिफ्थ डार्क दूसरी तरफ है, तो ऐसे केस में x3b प्लस x5d होगा। ओके, सिचुएशन उसमें ऐसा है कि सेंटर से एक बाजू थर्ड ब्राइट लो एंड दूसरी तरफ फिफ्थ डार्क, तो ये x3b जो आपने ढूंढा वो, x5d जो आपने ढूंढा वो, दोनों का ऐड करने के दोनों के बीच के डिस्टेंस के लिए। यानी अगर कोई ऐसा सम दिया तो प्लीज डू ड्रॉ द फिगर, locate the two positions and then take subtraction or addition as per the requirement। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। क्लियर, नोट कर लीजिए इसे। चलो चलते हैं फिर थर्ड नंबर के सम की तरफ। थर्ड में दिया है इन यंग एक्सपेरिमेंट फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस्ड बाय लाइट ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम सुपरपोज्ड ऑन फोर्थ ब्राइट ऑफ अननोन वेवलेंथ, फाइंड द अननोन वेवलेंथ। यहाँ पे बोला है फिफ्थ ब्राइट ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम एंड फोर्थ ब्राइट ऑफ अननोन वेवलेंथ आर सुपरपोजिंग, तो हमें फाइंड करना है ये वेवलेंथ कितना होगा ना। एज बोथ सुपरपोजर्स therefore पार्ट डिफरेंस इज सेम, पार्ट डिफरेंस सेम। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो सेंटर हमने स्मॉल डी या कैपिटल डी में कोई डिफरेंस चेंज नहीं किया, इवन दोनों के कारण जो मिला वो यहाँ पे वो भी फिक्स है, यानी x भी फिक्स है, तो x d અને कैपिटल डी तीनों सेम है, मतलब पार्ट डिफरेंस सेम हो गया। बराबर, दोनों सुपरपोज वर्डिंग आइदर बोथ सुपरपोजेस या बोथ कोइंसाइड्स
या ऑब्टेन एट द सेम पॉइंट, ऐसा कोई भी वर्डिंग दिया हो तो मीन्स देयर पाथ डिफरेंस इज सेम। तो पाथ डिफरेंस सेम है। अब ब्राइट फ्रिंज है दोनों केस में, तो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला लगा दें। देयरफॉर n1 लैम्बडा 1 फर्स्ट केस में, n2 लैम्बडा 2 दूसरे केस में, दोनों को इक्वेट कर दिया। फाइंड करना है लैम्बडा 2, देयरफॉर लैम्बडा 2 विल बी इक्वल टू n1 लैम्बडा 1 अपॉन n2। पुट अप द वैल्यूज, 5 into 4000 upon 5000 is nothing but 4000 angstrom। ये आ गया लैम्बडा 2। ओके, दोनों सुपरपोज है तो कंडीशन क्या है, पार्ट डिफरेंसेस सेम। दोनों सुपरपोज है मतलब पार्ट डिफरेंसेस सेम। फोर्थ सम उसके जैसा ही है, टेक्स्ट बुक का ही सम है, पर फिर से रिपीट करें इसलिए ताकि हमको ये एक बार फिर से दिमाग में फिट हो जाए। क्या दिया है, इन यंग एक्सपेरिमेंट अ बीम ऑफ वेव लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 and 5200 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। दो डिफरेंट वेवलेंथ्स मिक्स्ड हैं एक लाइट में। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वेयर ब्राइट फ्रिंज इज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द वेवलेंथ सुपरपोज्ड। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज 0.5 मिलीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर। दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, दो वेवलेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज 0.5 मिलीमीटर यानी कि 5 × 10⁻⁴ मीटर हुआ। कैपिटल D 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है मिनिमम डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वेयर बोथ द ब्राइट फ्रिंजेस सुपरपोज। अब फिर से सुपरपोज का केस है तो एज बोथ ब्राइट फ्रिंजेस सुपरपोज therefore path length is same, path difference is same, path difference is same, therefore n1 lambda 1 equal to n2 lambda 2, so therefore n1 upon n2 will be equal to lambda 2 by lambda 1। putting up the values 5200 upon 6500 एंगस्ट्रॉम में ये दोनों, तो दिस विल कम आउट बाय 4/5 बराबर है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हुए, therefore पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ सुपरपोजिशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ सुपरपोजिशंस क्या आएंगे, तो फोर्थ ब्राइट ऑफ लैम्बडा 1 एंड फिफ्थ ब्राइट ऑफ लैम्बडा 2 कोइंसाइड्स। ओके, तो ये रेशियो 4/5 रहेगा। फिर दूसरा पॉसिबिलिटी एट्थ ब्राइट ऑफ लैम्बडा 1 एंड 10th ब्राइट ऑफ लैम्बडा 2 सुपरपोजेस। फिर एक और कॉम्बिनेशन 12th ब्राइट ऑफ लैम्बडा 1, 12th ब्राइट ऑफ लैम्बडा 1 एंड 15th ब्राइट ऑफ लैम्बडा 2 कोइंसाइड्स एंड सो ऑन, द कॉम्बिनेशन गोज ऑन। बराबर है। हमें बोला है मिनिमम यानी क्या, लोएस्ट वैल्यू। ओके, तो शुरू करते हैं। फॉर मिनिमम डिस्टेंस फोर्थ ब्राइट ऑफ लैम्बडा 1 ले लें, therefore x d upon capital D which is equal to n1 lambda 1, therefore x will be equal to n1 lambda 1 capital D upon छोटा d। putting up the values, n1 कितना है, फोर्थ है, into lambda 1 6/5, this will be taken as 6.5 into 10 raised to -7 मीटर। ये हो जाएगा 6.5 into 10 raised to -7 मीटर into capital D 1 upon small d 5 into 10 raised to -4। so this will come out to be यहाँ 1.3 into 3 यानी 4.2 into 10 raised to -3 मीटर यानी कि 5.2 into 10 raised to -2 मीटर, therefore 0. और लेकिन ऐसा डायरेक्टली 5.2 मिलीमीटर हो गया। ओके, ये आंसर आ गया 5.2 मिलीमीटर। क्लियर, ये हो गया फोर्थ। एग्जैक्टली सेम है, खाली वैल्यूज बदले यहाँ पे, इतना ही चेंज है, बाकी सेम है। ओके, जस्ट एक बार फिर से याद ताजा हो जाए इसकी। क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए चलो फिर अगला सम ले रहे हैं, सम नंबर 5। क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा गया, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट if distance between two slits is double the wavelength, अगर distance between the slits is double the wavelength used, then prove that maximum 5 bright fringes will be obtained on the screen। prove करना है maximum 5 bright fringes will be formed। okay, now यहाँ पे as is a case of bright fringes,
So we use construct interference condition. For construct interference, path difference should be equal to n lambda, where n equal to 0, 1, 2, 3 and so on. ये हमने कंडीशन में देखा हुआ है ना. पार्ट डिफरेंस के लिए फॉर्मूला कौन सा लेंगे? तो नॉर्मली हम लोग x डी बाई डी लेते हैं अगर x ढूंढना है तो, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें कंडीशन ऑब्टेन करनी है तो विल टेक पार्ट डिफरेंस एज d sin थीटा. ये भी एक फॉर्मूला पार्ट डिफरेंस का. Therefore d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा हो गया. ना d इज ट्वाइस लैम्बडा, तो इसको लिखेंगे 2 लैम्बडा sin थीटा. d की जगह 2 लैम्बडा रख दिया, इज इक्वल टू n लैम्बडा. लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, तो sin थीटा विल बी इक्वल टू n by 2. sin थीटा इज इक्वल टू n by 2. बराबर है. नाउ वी नो दैट कंडीशन एज sin थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1. ये तो हमें मालूम है. sin थीटा की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से कम ही होती है. तो therefore n by 2 will be less than or equal to 1. तो therefore n will be less than or equal to 2. तो n की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी? लेस देन 2. लेस देन और इक्वल टू 2, तो 0, 1, 2 3 हो गए. तो therefore possible values of n are क्या आएगा? 0, 1 and 2. तो therefore n equal to 0 means central bright fringe on the screen. Central bright fringe. फिर n equal to 1 means first bright fringe on either side of central bright fringe. देखो स्क्रीन पे सेंट्रल ब्राइट के दोनों साइड का फर्स्ट ब्राइट, फिर n equal to 2 means second bright fringe on either side of central bright. Okay, either side of central bright. बोले तो सेकंड ब्राइट ऑन बोथ द साइड्स. तो टोटल कितने हुए? इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है. तो 1, 2, 3, 4, 5. तो therefore total number of bright fringes form क्या आएगा? will be equal to 1 plus 2 plus 2. 1 central bright, 2 first bright, 2 second bright. So total 5 bright fringes will be formed on the screen. Okay, hence the proof. This is the method how we go. अब यहाँ पे कोई भी रिलेशन दे सकते हैं. d इक्वल टू लैम्बडा दे, उसका लैम्बडा इक्वल टू d दिया हो एंड बोला सॉल्व करो. d इक्वल टू 3 लैम्बडा इक्वल टू d by 3 एंड सो ऑन. कुछ भी दे सकते हैं. जो भी रिलेशन दिया हो अकॉर्डिंगली चलो. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ये दोनों को इक्वेट करके फिर यहाँ सब्स्टिट्यूशन में जो भी गेम है यहाँ पे होगा. ओके, क्लियर? ये हो गया रिगार्डिंग सम नंबर 5. प्लीज नोट इट डाउन. So next we go on for number 6. Sum number 6 में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि in Young's experiment the distance in two slits is 1 millimeter. छोटा d आपको दिया 1 millimeter यानी कि 10⁻³ मीटर हो गया. And distance between two consecutive bright fringes is 0.03 centimeter. Now on displacing the screen away from the slits by 50 centimeter, the distance between two consecutive dark fringes is doubled. अब यहाँ पे देखो बोले find the wavelength. अब यहाँ पे देखो the screen is placed at some distance. तो दो consecutive bright fringe के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 0.03 सेंटीमीटर. ऐसा ही सिस्टम फॉलो करे से 3 × 10⁻⁴ ले लिया. फिर स्क्रीन को 50 सेंटीमीटर अवे लिया, अवे फ्रॉम द स्लिट्स, तो फिर डिस्टेंस बढ़ा 50 सेंटीमीटर. एज वी आर यूजिंग स्ट्रिक्टली एसआई सिस्टम तो 0.5 मीटर लेना है. बराबर है, तो ये ले लिया. तब डिस्टेंस कितना आ रहा है? दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस डबल आ रहा है इसका. अब दो सक्सेसिव ब्राइट बोलो, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस बोथ आर सेम. ये तो हमने थियरी में प्रूव भी किया, थियरी एज वेल एज मैथमेटिक्स दोनों प्रूव किया कि ये दोनों सेम है. जैसे यहाँ इन्होंने जानबूझ के वर्डिंग अलग अलग ली है और बोथ मीन द सेम थिंग. जो पहले डिस्टेंस था कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज का वही डबल हुआ अगर स्क्रीन को 50 सेंटीमीटर दूर ले गए. ओके, तो हमें फाइंड करना है इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ. ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. स्क्रीन को दूर ले गए तो डिस्टेंस में कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज इंक्रीज हुआ, तो हमें फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट कितना. नाउ एक्स बार distance between two consecutive bright fringes given as x lambda d upon d. ब्राइट हो या डार्क डिस्टेंस का फॉर्मूला ये आता है
बराबर है। पहले केस में लिखे तो x1 बार इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन छोटा डी, एंड दूसरे केस में लिखो तो x2 बार इक्वल टू लैम्बडा डी प्लस 0.5 अपॉन कैपिटल स्मॉल डी। देखो डी बदला है, लैम्बडा सेम x1 बार x2 बार। अब अगर हमें डी फाइंड करना होता, इफ यू वुड हैव टू फाइंड डी, तो हम लोग रेशियो ले लेते। अगर ये डिस्टेंस पूछा था तो रेशियो लेते, पर हमें लैम्बडा पूछा है इसलिए रेशियो नहीं लेना है। यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दिस माइनस दिस, देयरफॉर x2 बार माइनस x1 बार इज इक्वल टू, दोनों में लैम्बडा बाई डी कॉमन, d प्लस 0.5 माइनस डी, सो दैट मेक्स 0.5 लैम्बडा अपॉन डी, दैट x2 बार माइनस x1 बार। हमें लैम्बडा फाइंड करना तो लैम्बडा विल बी इक्वल टू d इंटू x2 बार माइनस x1 बार अपॉन 0.5। वैल्यू पुट अप करें तो 10 रेज टू माइनस 3 स्मॉल डी का वैल्यू, दोनों का डिफरेंस कितना, तो x2 बार माइनस x1 बार, 6 इंटू 10 रेज टू 4 माइनस 3 इंटू 10 रेज टू 4 माइनस 4, दैट 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 आएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन। ओके, अपॉन 0.5, तो 0.5 ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर, यानी कि 6000 एंगस्ट्रॉम और 600 नैनोमीटर, वट एवर यू वांट टू पुट, दोनों वैलिड है। ओके, ये आ गया सम नंबर 6, प्लीज नोट कर। हाँ, इसमें वेरिएशन हो सकता है कि डी प्लस कर दे, डी माइनस कर दे, डिस्टेंस आधा हो जाए, बराबर, ये वेरिएशन आ सकता है। वैल्यू चेंज करे या फिर वेरिएशन में स्लिट को दूर, स्क्रीन को दूर लेगा, उसको ले नजदीक लाए, तो अकॉर्डिंगली चेंजेस बताएंगे। मेथड विल रिमेन द सेम। ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नंबर 9। तो चलते हैं सम नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर में दिया है कि the ratio of intensities of rays emitted from two different coherent sources is alpha. For interference pattern formed by them, prove that Imax plus Imin upon Imax minus Imin is equal to 1 plus alpha upon 2 root alpha. ये प्रूव करना है। I1 I2 रेशियो दिया हुआ है दो इंडिविजुअल रेज का। अब यहाँ पर शुरू करते हैं। We know that intensity is proportional to square of amplitude. So therefore I1 upon I2 will be equal to A1 upon A2 का होल स्क्वायर। Therefore A1 by A2 का होल स्क्वायर will be equal to alpha, I1 by A2 ना alpha. So therefore we can say that A1 upon A2 will be equal to root alpha. स्क्वायर रूट कर लिया, बराबर है ना। A1 और A2 एम्पलीट्यूड हो गए दोनों इंडिविजुअल वेव्स के, तो मैक्सिमम कितना होगा सुपरपोजिशन में, तो सुपरपोजिशन में मैक्सिमम इज एडिशन ऑफ द एम्पलीट्यूड and minimum is subtraction of the amplitude. Now for superposition of two waves, or let's say interference of two waves, A max यानी maximum amplitude is A1 plus A2 and minimum amplitude is दोनों का subtraction, that is A1 minus A2, बराबर है ना। अगर देखें तो therefore I max upon I min, ये सेम रिलेशन है, प्रोपोर्शनल इसका पढ़ लेंगे, विल बी इक्वल टू A max अपॉन A min का स्क्वायर, दैट इज A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अब उसके लिए तो यहाँ कंपोनेंट और डिविडेंड करना पड़ेगा, तो इसको एक स्टेप और आगे लेते हैं। तो A1 प्लस A2 ऊपर एडिशन, नीचे सब्ट्रैक्शन A1 माइनस A2, एंड दैट इज रूट अल्फा अपॉन 1 होगा बाय डिफॉल्ट, तो रूट अल्फा प्लस 1 अपॉन रूट अल्फा माइनस 1 आएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो दिस विल बी रूट अल्फा प्लस 1 अपॉन रूट अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर। ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो हमें मालूम है। अभी आई मैक्स अपन आई मीन आ गया, हमें क्या पूछा है, इसका भी कंपोनेंट और डिविडेंड हो, तो टेकिंग कंपोनेंट एट डिविडेंड क्या आएगा, ऊपर एडिशन आई मैक्स
प्लस आई मीन, नीचे सब्ट्रैक्शन आई मैक्स माइनस आई मीन एंड दैट विल बी इक्वल टू, ऊपर एडिशन करेंगे इन दोनों का तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 2 टाइम्स अल्फा प्लस 1, 2 टाइम्स अल्फा प्लस 1 और नीचे एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है दोनों कट जाएंगे 4 रूट अल्फा, सो दैट विल बी अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 रूट अल्फा, हेंस द प्रूफ। ओके, ये हो गया। अब ये सब में वेरिएशन क्या क्या हो सकते हैं समझते हैं। पॉसिबल वेरिएशंस, अल्फा के बदले कोई वैल्यू दिया हो, सपोज 9 दे दिया हो तो 9 दिया हो तो यहाँ पे 9 आएगा, 9 का रूट यानी 3 हो जाएगा, फिर सिमिलरली चलता जाएगा, कोई वैल्यू दिया हो, एक ऐसा हो सकता है। दूसरा, रादर देन गिविंग इंटेंसिटी रेशियो यू माइट बी गिवन A1/A2 रेशियो, यहाँ से डायरेक्टली दे दिया तो यहाँ से शुरू करना है, फिर A1/A2 आपको डायरेक्टली दे दिया तो मैक्सिमम मिनिमम करके आगे चलना है। हो सकता है यहाँ से शुरू करें, इतना ही पूछा आई मैक्स अपॉन आई मीन का रेशियो फाइंड करो, इतना भी हो सकता है। ओके, सो इट कैन बी ऑफ दिस वेराइटी ऑफ स्टेप, कहीं से भी चालू कर, यहाँ से चालू करके यहाँ पे या यहाँ पे खत्म करा। बी केयरफुल, रीड द क्वेश्चन, स्टार्ट अकॉर्डिंगली एंड एंड अकॉर्डिंगली। ओके, तो इसमें इतने वेरिएशन आ सकते हैं एंड सबसे मेन तो यही है कि वैल्यू चेंज, वैल्यू दिया अल्फा के बदले, देन इट बिकम्स मोर इजियर टू सॉल्व। क्लियर, ये हो गया सम नंबर 9, प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ पे इंटरफेरेंस के जो एक्स्ट्रा सम मुझे करवाने थे, ऑलमोस्ट पॉसिबल ऑल मेथड्स कवर हो गई है। ओके, सो बी रेडी फॉर द एंट्रेंस टेस्ट।